Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Linear equations in two variables. In earlier session we have already done about the question number 13. Today we are going to start with the question number 14, which is the statement question. In this given that the ratio of boys and girl in a class is 3:2. ठीक है, जो हमारा रिलेशन है बॉय और गर्ल्स इन ए क्लास इज 3:2. Then set up an equation. What we have to do? We have to set up an equation between boys and the total student. जो हमारे boys हैं और total student हैं उनके बीच में हमें क्या करना है? Relation establish करना है. So the ratio of boys and girls in a class. Ratio of boys and girls in a class is 3:2. Set up an equation between boys and total student in the class. Then draw its graph. Find the number of boys in the class of 25 students. Here we have the 25 students given in the question. We have to find the two things in the question. What are these? First of all, we have to draw the graph, and second, we have to find the number of boys. What we have to find? We have to find the number of boys or class of 25 students. ठीक है? Means girl and boys are 25. Total जो है हमारा वो कितना है? 25 है. See here. Let boys are x. Boys कितने हैं हमारे पास? x. और girls है वो y. ठीक है? girl y है. So there must be a relation between the girls, boys and the total students. So 3x plus 2y is equal to 25. This is the relation between the boys and the girls. ठीक है? Because x is the boys, y is the girls. 3x plus 2y is equal to the 25. ये तो आ गया हमारा फर्स्ट रिलेशन जो क्या शो कर रहा है बॉयज और गर्ल्स के बीच में. ठीक है, बॉयज और गर्ल्स के बीच में ये रिलेशन शो कर रहा है. बट इन क्वेश्चन सेट अप एन इक्वेशन बिटवीन बॉयज एंड द टोटल स्टूडेंट्स. इन क्वेश्चन वी हैव टू सेट अप एन रिलेशन बिटवीन द बॉयज एंड टोटल स्टूडेंट्स. इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. नॉट बॉयज एंड द गर्ल्स. बॉयज और गर्ल्स के बीच में नहीं करना है, बॉयज एंड टोटल स्टूडेंट के बीच में करना है. ठीक है, एज वी ऑल नो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो. रेशियो प्रॉपर्टी क्या होता है यहाँ पे? यहाँ होता है टोटल. हियर वी हैव द पार्ट ऑफ दिस सेक्शन. और यहाँ पे होता है हमारा फिर फाइनल जो रिजल्ट आता है वो. लेट्स इट हियर इज द एक्स एंड जो क्वांटिटी है वो हमारी कितनी है? वाई. ठीक है, अब किसके बीच में? बॉयज एंड दी टोटल स्टूडेंट के बीच में. अब देखो टोटल कितना है हमारा रेशियो में? 3 plus 2 is the 5. ये आ गया हमारा 5. अब बॉयज का रेशियो कितना है? 3. ये 3 एंड y. हियर इज दी x. ठीक है, देन 3y इक्वल टू 5x. ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन दी बॉयज एंड दी टोटल स्टूडेंट. बॉयज और टोटल स्टूडेंट के बीच में रिलेशन क्या आया? 3y इक्वल्स टू 5x. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड दी और ड्रॉ दी ग्राफ. हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है. फॉर ड्रॉइंग दी ग्राफ वी हैव टू टेक दिस इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन को हमें लेनी है क्या थी हमारी? 3y इक्वल टू 5x. दिस इज द रिलेशन बिटवीन बॉयज एंड दी स्टूडेंट ऑफ ए क्लास. ठीक है, टोटल स्टूडेंट ऑफ ए क्लास एंड बॉयज. 3y इज इक्वल टू 5x. First we have to draw the graph. For the graph we have to find the points, and for the points we have to find the coordinates. And what are the coordinates? How it will get? Coordinates are the solution of this linear equation. इस linear equation के जो solution होंगे वो क्या होंगे? Coordinates होंगे. ठीक है, let's take x. x equal to 3. x equal to 3. If we replace x is equal to 3 in this linear equation, which 3y equal to 5x consists. ठीक है, तो इसमें y क्या आएगा हमारा? Replace the x by 3. 3y equal to 5 into 3. Then finally y will get 5 into 3 by 3. Now y is equal to the 5. y क्या आ गया हमारा? 5 आ गया. So इसके coordinates क्या आ जाएंगे? 3, 5. दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, फिर सेकेंडली x हम एज्यूम करते हैं क्या? 6. लेट x है वो हमारा कितना है? 6. x इज द 6. इफ वी रिप्लेस x टू द 6 देन व्हाट विल बी द y? लेट्स चेक इट. 5 into 6.
y इक्वल टू 5 इंटू 6/3, y इक्वल टू 5 इंटू 2, बिकॉज 6 divided by the 3 get 2 times division, 5 into 2, so y equal to 10. If we replace x to the 6, then y we will get 10. So second coordinate हमारे आ गए 6, 10. Now third coordinates. अब हम third coordinates की बात करते हैं. If we replace x to the -3, -3 को रिप्लेस करते हैं तो y कितना आएगा? -5. इफ वी रिप्लेस x इज इक्वल टू -6 करते हैं तो क्या आ गया y? -10. अब देखिए यहाँ पे 3 और 6 ही क्यों एज्यूम कर रहे हैं, 0, 1, 2 क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज इफ वी सब्सटीट्यूट 1, 5 इंटू 1 इज दी 5, देन 5/3 इज दी रेशनल नंबर्स. ठीक है, रेशनल नंबर्स को ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए, लोकेट करने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी आती है. सो दैट्स वाई वी हैड यूज दी होल नंबर 3 and 6 विच इजीली डिवाइडेड बाय दी 3. ठीक है, फिर हमारा x इक्वल टू क्या हम यूज लेते हैं? 9 आल्सो डिवाइड बाय दी 3, सो दैट्स वाई वी यूज 9. देन 3y इक्वल टू 5 इंटू 9, y इक्वल टू 5 इंटू 9/3. फाइनली वी विल गेट 9/3 इज दी 3, 5 इंटू 3 इज दी 15. सो फाइनली हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 9, 15. ये तो आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स. अब क्या करेंगे हम? नाउ लोकेट इट ऑन दी ग्राफ. अब क्या करेंगे हम? ग्राफ पे इसको लोकेट करेंगे. ये आ गया हमारा ग्राफ. हियर वी हैव दी x एक्सिस, हियर वी हैव दी y एक्सिस, which both are the positive. Here we have the negative y and negative x. This is the graph. अब हम फर्स्ट पॉइंट लोकेट करते हैं. फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 5. लेट यहाँ पे हम ले लेते हैं ये हमने पॉइंट एस्टेब्लिश कर दिया. ठीक है, ये सेक्शन है इनके अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 3 and 5. 3 on the x, this is the 3 and 5, 1 2 3 4 and 5. So this is here. Here is the point 3, 5. ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया 3, 5. Then second we have 6, 10. 6 we had 4, 5 and 6. 6 is the here and 10. 5 we had here, 1 2 3 4 and 5, 6 7 8 9 and 10. Here we have the another one. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे और ये यहाँ पे पॉइंट एस्टेब्लिश करेगा विच इज दी 6, 10. क्या है? 6, 10, 6, 10. Here we have the 9, 15. 9, 15. 11 12 13 14 and 15. This is the 15 and here we have the 6 7 8 9 and 10. 9, 15. So this is the 9, 6 7 8 and 9. This is the third point. क्या? 9, 15. ठीक है, 9, 15, 6, 10 and 3, 5. 9 is the x, here is the 9 and 15 is on the y. This is the point we get from the coordinates. ये आ गए हमारे points coordinates से. ठीक है, now meet all the points. क्या करेंगे? सारे points को हम join करवाएंगे. We will get straight line. क्या मिलेगी हमें? Straight line मिलेगी. ये origin को होके पास करेगी. क्यों करेगी origin को होके पास? Because if we place x is equal to 0, अगर x हम 0 प्लेस करते हैं तो y भी हमारा क्या आएगा? 0 आएगा. So that's why 0, 0 also a point on this straight line. अब ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है? 3y equal to 5x. This straight line represent as a linear equation. ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी लीनियर इक्वेशन. ठीक है, 3y equal to 5x. ये तो हो गए हमारे इस टाइप के. ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट 3y equal to the 5x इक्वेशन के अकॉर्डिंग. सेकेंड सेक्शन इज फॉर बॉयज इन क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स. Now what we have to find? We have to find the number of boys if a class consists of a 25 students. अगर क्लास में 25 स्टूडेंट्स है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे वहाँ पे? कितने? नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? ठीक है, तो लेट्स फाइंडिंग द नंबर ऑफ बॉयज. अब हमारी इक्वेशन क्या थी? 3y equal to 5x.
वेयर वाई, वाई क्या था हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड व्हाट इज द एक्स, एक्स इज द नंबर ऑफ बॉयज, क्या आ गया, नंबर ऑफ बॉयज आ गया। देखिए 3y इक्वल टू 5x, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैड ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने हैं हमारे 25, सो वी हैव टू रिप्लेस y इक्वल टू 25, y को हम क्या करते हैं 25 से रिप्लेस करते हैं फॉर फाइंडिंग दी नंबर ऑफ बॉयज विच रिप्रेजेंट बाय दी x, सो 3y इक्वल टू 5x, रिप्लेस दी y बाय दी 25, 3 इंटू 25 5x, सो x हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू 25 बाय 5, ये आ गया हमारा। नाउ 25 बाय 5 इज डिवीजन बाय 5, 5 इंटू 3 इज दी 15 इज दी x, नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया हमारा 15 नंबर ऑफ बॉयज। इफ वी हैड आस्क्ड अबाउट द गर्ल्स, अब गर्ल्स को भी अगर हम पूछें तो गर्ल्स कितना आ जाएगा इसमें 25 minus 15 is the 10, this is the number of girls and 15 is the number of boys in a class of 25 students, so this is all about the question number 14, यही था आपका क्वेश्चन नंबर 14। इन दिस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बाय गिविंग रेशियोज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रेशियोज वी हैव टू क्रिएट द इक्वेशन जनरेट करेंगे, फिर उससे हमें इनके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर उससे हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन। देन सेकंड पार्ट है हमारा बॉयज, तो बॉयज को हम जो हमारी लीनियर इक्वेशन में उसमें हम जो स्टूडेंट का हमने एज्यूम किया था वहाँ पे 25 प्लेस करेंगे, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।